Welcome to We Learn. This is part 1, session 1 of Strategic Technology Planning. So, in today's session, we are going to discuss the following topics. So, first of all, we are going to discuss what is strategy. Then, after that, we are going to discuss what is a strategic plan. After that, what is the strategic planning process. After that, we are going to discuss what are the big planning pitfalls, and at last we are going to cover components of a strategic plan. So first of all, let's start with what is strategy. So basically, strategy means consciously choosing to be clear about your company's direction in relation to what's happening in the dynamic environment. With this knowledge, you are in a much better position to respond proactively to the changing environment. मतलब स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि कोई भी हमारी जो कंपनी है वो किस डायरेक्शन में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी एंड हाउ द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. हमारे जो नियर बाय एनवायरनमेंट है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ऑपरेशंस हैं, वी आर द वे विच वी आर कैरिंग आउट दीज ऑपरेशंस कम्स अंडर द strategy. So the fine points of a strategy are as follows. Here the first point is establishes unique value proposition compared to your competitors. That means यहाँ पर जो हमारा comparison होता है, you can say with the competitors, वो एक unique value यहाँ पर provide कराता है. That means it is separating your company from the competitors company. The next point here is executed through operations that provide different and tailored value to customers. यहाँ पर जो हमारा मेन टास्क होता है, मेन प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना है, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर वंस. जो हमारे अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ये डिफरेंट होना चाहिए ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम अट्रैक्ट कर सकें. सो द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज आइडेंटिफाइज क्लियर ट्रेड ऑफ्स एंड क्लैरिफाइज व्हाट नॉट टू डू. सो यहाँ पर प्रॉपरली हम स्ट्रेटेजी की हेल्प से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की हेल्प से डिसाइड करते हैं ऑपरेशंस विद विच वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट नॉट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकसेस ऑन एक्टिविटीज दैट फिट टुगेदर एंड रीइंफोर्स ईच अदर. हम यहाँ पर उन एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जो कि हमारे लिए प्रॉपरली हमारे प्लान्स में फिट होती हैं एंड विच आर हेल्पफुल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन. The next point related to strategy is knowing what strategy is can also be explained by looking at what strategy is not. So स्ट्रेटेजी में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उनको हम बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम एक सेपरेट ग्रुप बना दें कि कौन कौन से हमारे जो फील्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो स्ट्रेटेजी में नहीं आते. सो बेसिकली द स्ट्रेटेजी इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट. सो स्ट्रेटेजी क्या नहीं होता है, इट इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस. Then it is not the execution of tasks. Similarly, it is not the aspirations which we get from other competitors, or you can say the organizations. So it is not a vision. Similarly, it is not a learning process, and it is not a agility, and it is not a flexibility as well. Now the next topic here is what is a strategic plan. So basically, a strategic plan is the formalized roadmap that describes how a company executes the chosen strategy. A plan spells out where an organization is going over the next year or more and how it's going to get there. हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो हमें किस वे में ले जा रहे हैं. हमारी जो प्लानिंग है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, हमें किस वे में ले जा रहे हैं, वेदर दे आर टेकिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन टू अ प्रॉपर गोल और नॉट. सो बेसिकली इट एक्ट्स एज अ रोड मैप टू डिस्क्राइब द operations performed in a organization. So typically the plan is organization wide or focused on a major function such as a division or a department. जो हमारा प्लान होता है वो डिपार्टमेंट वाइज हम डिसाइड करते हैं. हर एक डिपार्टमेंट का एक डेफिनेट प्लान होता है, एक सेपरेट प्लान होता है, एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स perform their task according to that plan. Now basically a strategic plan is a management tool that serves
द पर्पस ऑफ हेल्पिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डू ए बेटर जॉब। हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है वो एक मैनेजमेंट टूल होता है जो कि हमें एक टूल प्रोवाइड कराता है, हमें एक हेल्प प्रोवाइड कराता है टू परफॉर्म द टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर मैनर। So because a plan focuses the energy, resources and time of everyone in the organization in the same direction. Now basically it consists of different categories. So what is a strategic plan? So a strategic plan is for established businesses and business owners who are serious about growth. जो strategic plan होता है वो उन organizations के लिए, उन बिजनेस ओनर्स के लिए होता है जो कि अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस होते हैं। सो इट हेल्प्स बिल्ड योर कम्पिटिटिव एडवांटेज। सिमिलरली इट कम्युनिकेट्स योर स्ट्रेटेजी टू स्टाफ। इसकी हेल्प से हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है हम वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर स्टाफ के लिए। सिमिलरली प्रायोरिटाइजेज योर फाइनेंशियल नीड्स। हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको एक प्रायोरिटी असाइन करता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन परफॉर्म आवर ऑपरेशंस। At last, it provides focus and direction to move from plan to action. जो हमारी प्लानिंग है उसको अब हम रियली में एक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं with the help of this strategic plan. Similarly, a business plan on the other hand is for new businesses, projects or entrepreneurs who are serious about starting up a business. कोई भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, अगर वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर बिजनेस प्लान यूज करते हैं। सो इट हेल्प्स डिफाइन द पर्पस ऑफ योर बिजनेस। ये हमारे जो कोई भी बिजनेस है उसका मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं बिजनेस प्लान का। सिमिलरली इट हेल्प्स प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑपरेशनल नीड्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज क्रिटिकल इफ यू आर सीकिंग फंडिंग। सिमिलरली एसेसेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एसेस करता है। एंड एट लास्ट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू आइडियाज। जो हमारे आइडियाज होते हैं उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट योर स्ट्रेटेजिक प्लान यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको कैरी आउट करने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सो द प्लानिंग प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड सेवरल मेजर एक्टिविटीज और स्टेप्स। हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस होती है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। बेसिकली पीपल ऑफन हैव डिफरेंट नेम्स फॉर दीज मेजर एक्टिविटीज। जो यहाँ पर हमें एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं कोई भी टास्क को कैरी आउट करने के लिए, जनरली दीज आर कैटेगराइज्ड बाय डिफरेंट नेम्स, सो दे मे इवन कंडक्ट देम इन अ डिफरेंट ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द बिग प्लानिंग पिटफॉल्स। हमारी कोई भी प्लानिंग है उसमें जो पिटफॉल्स हैं, यू कैन से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पर उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैन यील्ड लेस देन डिजायरेबल रिजल्ट्स इफ इट एंड अप इन वन ऑफ द पॉसिबल पिटफॉल्स। जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो रिजल्ट कर सकती है हमारे, यू कैन से जो हमारा आउटपुट है हो सकता है उससे डाइवर्ट हो जाए, हमारा जो गोल था उससे हम लोग डाइवर्ट हो जाए, हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के लिए, प्रॉपर गोल अचीवमेंट के लिए हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई पिटफॉल्स नहीं होने चाहिए। सो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग हियर इज अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रैप्स टू अवॉइड। अब अगर हमें अपने पिटफॉल्स अवॉइड करने हैं तो यहाँ पर कुछ हमारे पिटफॉल्स शो किए गए हैं एंड वी हैव टू अवॉइड दीज पिटफॉल्स। नाउ हियर द फर्स्ट वन इज रिलाइंग ऑन बैड इंफॉर्मेशन और नो इंफॉर्मेशन। सो अ प्लान इज ओनली एज गुड एज द इंफॉर्मेशन ऑन विच इट्स बेस्ड। कोई भी हमारा जो प्लान है वो उतना अच्छा होता है जितनी अच्छी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी। सो इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट और नॉट अवेलेबल देन द प्लान विल नॉट बी गुड। सिमिलरली द नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग व्हाट योर प्लानिंग प्रोसेस रिवील्स। सो प्लानिंग इजंट मैजिक। प्लानिंग क्या है, कोई मैजिक नहीं होता जिससे कि आप श्योरली किसी टास्क को अचीव कर लोगे। सो द प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड्स रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। जो भी हम प्लानिंग प्रोसेस करते हैं उसके लिए प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए टू परफॉर्म अ टास्क। सो योर इन्वेस्टिगेशन मे yield results that tell you
not to go in a certain direction. Don't ignore that information. Now the next point is being unrealistic about one's ability to plan. So under this category we have to put planning in its place and time. जो भी हमारी प्लानिंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें करनी होती है और एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए, प्लेस के लिए करनी होती है. सो इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट टू प्लान वेल. तो यहाँ पर हमें एक प्लानिंग के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए सो दैट वी कैन परफॉर्म द टास्क इन अ बेटर मैनर. Now some companies want the results but aren't willing or able to make the investment. कुछ कंपनीज का क्या थिंकिंग होती है कि वो सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, they need the output but they don't want to make the investment. So be realistic about what you can invest. तो यहाँ पर हमें रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए. That means the thing which we can invest should be able to get समथिंग रिटर्न फ्रॉम दैट बिजनेस. जो भी हम चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमें कुछ आउटपुट भी मिलना चाहिए, कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए. सो फाइंड अ वे टू प्लान दैट सूट्स योर अवेलेबल रिसोर्सेज विच इंक्लूड योर टाइम, एनर्जी एंड मनी. इसीलिए हमें एक ऐसा प्लान चूज करना चाहिए जो कि हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमको सूट करता है, सेटिस्फाई करता है. नाउ दीज नीड्स कैन बी अकॉर्डिंग टू द टाइम, एनर्जी और मनी. नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज planning for planning sake. So planning can become a substitute for action. प्लानिंग क्या होता है? जब तक कोई प्लानिंग हम नहीं करेंगे कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते. सो प्लानिंग एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्शन. सो डोंट प्लान सो मच दैट यू इग्नोर द एग्जीक्यूशन. हमें प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करनी चाहिए. हमें एडवांस में ही इतनी हाई फाई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कि हम उन स्टेप्स को फॉलो ना कर पाए. सो वेल लेड प्लान्स टेक time to implement and results take time to yield an outcome. Now the next point here is get your house in order first. So planning can reveal that your house isn't in order. When an organization pauses to plan, it issues that have been buried or put on the back burner come to the forefront and can easily derail your planning efforts. So make sure that your company is in order and that there are no major conflicts before you embark or strategizing. So यहाँ पर कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम होती हैं related to the strategies, related to the planning, उन्हें हमें एडवांस में ही सॉल्व कर लेना चाहिए. Because if they arise in between, then it is going to create a large problems in the organizational process. Now the next point here is don't copy and paste. So it's easy to fall into the trap of copying the best practices of a company similar to yours. किसी भी कंपनी के जो प्रैक्टिसेस हैं अगर आप उनको कॉपी करोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं ट्रैप होने के. सो वी हैव टू अवॉइड दिस प्रोसेस. Although employing best practices from your industry is important, other organizations' experience aren't relevant to your own. That means every company has different way of working, has different nature. So we should not copy the others organization, the functioning of other organization. So organizations are unique, complex and diverse. You need to find your own path instead of following a cookie cutter approach. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अपना पाथ फॉलो करना चाहिए, एक अपना एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. हमें किसी और का पाथ फॉलो नहीं करना चाहिए. बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन way, own path and its own way of working. Now comes the next topic, that is components of a strategic plan. So here the first point is strategy and culture. So your organization's culture is made up of people, processes, experiences, ideas and attitudes. जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो कुछ पर्सन से, प्रोसेसेस से, आइडियाज से, एटीट्यूड से मिलकर बना होता है. सो योर स्ट्रेटेजी इज वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड, व्हाट पाथ इट टेक्स एंड हाउ इट गेट्स देयर. हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या पाथ फॉलो करना है, हमारा गोल क्या है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे. सो इट कांट हैव स्ट्रेटेजी विदाउट कल्चर और वाइस वर्सा. सो आप स्ट्रेटेजी तब तक नहीं क्रिएट कर सकते, स्ट्रेटेजी तब तक नहीं फॉलो कर सकते जब तक कोई एक कल्चर नहीं होगा. सिमिलरली जब तक स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो एक कल्चर भी फॉलो नहीं हो सकता. सो
So your culture is like your house, and if it's not in order, the best strategy in the world can't take your company anywhere. Now the next point here is internal and external. So similar to the strategy and culture framework, you have an internal and external framework. The strategy is external. So you gather information from your customers, competitors, industry and environment to identify your opportunities and threats. Through employee surveys, board assessments and financial statements, you identify your company's strengths and weakness which are internal. यहाँ पर क्या होता है, हम इंटरनल और एक्सटर्नल वीकनेसेस को भी फाइंड कर सकते हैं. दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल वीकनेसेस कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स, सर्वे बोर्ड्स, असेसमेंट्स. ये हम असेसमेंट्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वीकनेसेस क्या हैं, कहाँ हमारे शॉर्टकमिंग्स हैं. सर्वेज के थ्रू कर सकते हैं, बोर्ड असेसमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं. नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड perspectives. So the balanced scorecard is a framework used to develop goals and objectives in 4 areas. जो यहाँ पर हमारा बैलेंस्ड स्कोर कार्ड होता है वो एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जो कि गोल्स को डेवलप करने के काम आता है, ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करने के काम आता है. बेसिकली इट डील्स विद 4 areas and these 4 areas are as follows. So the first one is financial, then customers, then internal business processes and at last peoples. So the financial, internal business processes and people areas are internal and the customer area is external. यहाँ पर जो हमारे customer area होता है वो external होता है और जो peoples होते हैं, business processes हैं, ये सब internal होते हैं. Now comes the next point, that is market focus. So growth comes from focusing on your customers and delivering superior value to them consistently year after year. So built into your strategic plan is a market focus framework because of how critical this is to your organizational growth. So market focus means हमें जो हमारा जो मेन फोकस होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस होता है वो होता है मार्केट पर. So we have to deliver the goods which satisfy the customers, which have a superior value to them. Now the last topic of this session is the last point is where are we now, where are we going and how will we get there. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा इसमें स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है वो क्या होना चाहिए कि अभी करंटली हम किस पोजीशन पर हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और हम वहाँ पर किस तरीके से पहुँचेंगे, उस लेवल पर कैसे पहुँचेंगे. सो because it's easy to confuse how all the elements of a plan come together and where they go, this framework is a simple yet clear way of looking at the whole प्लान. क्योंकि हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस होती है काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रोसेस होती है. सो इस एस्पेक्ट के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है. सो बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन. थैंक यू.